کسی مومن نے کسی مومن کو گالی دی، اگر کسی نے کسی مومن کو گالی دی، اگر کسی نے کسی مومن کو گالی دی تو اس نے اپنی ماں اور بیٹی کے ساتھ میں زنا کاری کی۔ اللہ اکبر۔ ہم بات پر گالی، بات پر گالی، عمل کے لیے تو یہی کافی ہوگا کہ جلسے سجائے کیوں جاتے ہیں؟ اسی لیے تو کونے کونے سے آواز یہ گونجتی ہے، آئیں گے ہمارے نبی مدینے کی سرزمین سے، سبحان اللہ، آئیں گے ہمارے نبی مدینے کی سرزمین سے۔ اے عاشق نبی، اے عاشق نبی، تو پھرتا کہاں کہاں ہے؟ اے عاشق نبی، تو پھرتا کہاں کہاں ہے؟ جنت اتر گئی ہے بشتان کی سرزمین پر۔ سبحان اللہ، سوچ رہے ہیں کہ یار جنت اتر گئی ہے ہماری بشتان کی سرزمین پر، تو جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے، بے شک ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں ہم لوگ جو کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل مان کر کے بیٹھے ہیں، بے شک خوش نصیب ہیں، اتنے بڑے خوش نصیب ہیں۔ اب یہ راستہ کوئی عام راستہ نہیں ہے، جتنی دیر بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا رہے گا اتنی دیر کے لیے یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی میں نے آپ سے کہا اس کی آواز کم کر دیجیے، اگر لوگوں کو سمجھ لو، اور آواز ایک بار سیٹنگ کر کے بالکل چھوڑ دیجیے اس کو، آگے پیچھے پیچھے کچھ نہ کیجیے، بالکل چلیے جی پڑھ دو پاک اللہ تو یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہے بلکہ جتنی دیر کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا اتنی دیر کے لیے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے، آقا کا جشن منایا، جلوس نکالا، یہ جھنڈے لگائے، اپنے مکانوں پر جھنڈے لہرائے۔ کون سا مہینہ ہے یہ؟ 12 ربیع النور شریف کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب نور والے کا تذکرہ نور والے ہی کرتے ہیں، بے شک نور والے کا تذکرہ نور والے ہی کرتے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، علماء اکرام نے تصریح فرمائی ہے کہ ماہ ربیع الاول کا مرتبہ، ماہ ربیع الاول کا مرتبہ باقی تمام مہینوں سے بلند ہے۔ بے شک ذرا زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، باقی تمام مہینوں سے بلند ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کی شان بھی اس مہینے کی شان سے کم۔ بے شک وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم اترا ہے اور ماہ ربیع الاول شریف میں صاحب قرآن تشریف لایا ہے۔ سبحان اللہ، اس میں قرآن آیا، اس میں قرآن والا تشریف لایا۔ بے شک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔
अल्लाह इसमें कुरान उतारा है रमजान के महीने में और इसमें कुरान वाला तशरीफ है, इसमें हमारे नबी तशरीफ लाए। अगर वो नबी ना होते तो जमीन होती ना होती, अगर वो नबी ना होते तो आसमां होता। ये सब उन्हीं का सदका है। बेशक लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमीन भी है आसमां भी है और जो कुछ रब ने बनाया है ये उसी नबी का सदका है। बेशक उस रब ने अपने हबीब के सदक़े में सब कुछ बनाया है, दोनों जहां को पैदा फरमाया है, उस नबी का सदका है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये माह रबीउल नूर शरीफ की तो बरकतें हैं जो कि ये लाइट सजाई गई है, ये माह रबीउल अव्वल शरीफ की ही तो बरकतें हैं जो कि अपने अपने मकानों पर झंडे लगाए गए हैं। लेकिन आज कोई कहने वाला हमसे क्या कह देता है कि यार ये 100 रुपए के झंडे लगाते हैं, 200 रुपए के झंडे लगाते हैं, अगर ये झंडे ना होते, अगर ये झंडे ना लगाए जाते और इसके बदले का अगर गरीबों को खाना खिला दिया जाता, अगर इसके बदले में गरीबों में तकसीम कर दिया जाता, यतीमों को तकसीम कर दिया जाता तो क्या ही अच्छा होता। तो ऐ अंधे हमने जवाब दे दिया, ऐ बोलने वाले, ऐ सवाल करने वाले, जरा सुन तो सही, एक जवाब हमें भी तो देता जा। तेरे पास में मोबाइल 50,000 का तूने मोबाइल लिया है, लेकिन जो 50,000 का मोबाइल काम कर रहा है वही मोबाइल 15,000 का काम कर रहा है। तो तू 50,000 का मोबाइल ना लेता, 15,000 का मोबाइल लेकर के अपना काम चला लिया होता और जो कि 35,000 रुपया बाकी बचा था वो गरीबों में तकसीम कर दिया होता तो क्या ही अच्छा। सुभान मरहबा। अगर ये गरीबों में तकसीम कर दिया होता तो क्या ही अच्छा होता। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि झंडे की हकीकत क्या है, उन्हें मालूम नहीं है कि झंडा है क्या चीज, झंडा किसको कहते हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जो झंडा है अल्हम्दुलिल्लाह ये किसकी सुन्नत है, ये कहाँ से सबूत है। हमसे सबूत मांगे जाते हैं, अगर झंडे का कहीं से सबूत है, झंडा लगाना बताओ जायज कहाँ से है। तो हज़रात मोहतरम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो हम बोल पढ़ते हैं, इधर से मुफ्ती साहब बोल पढ़ते हैं कि आओ प्यारे हुनर आजमाए, आओ प्यारे हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए। अरे तुम हमसे झंडे का सबूत मांगते हो कि झंडा लगाना कहाँ से साबित है, तो आओ वही आमना की आंखों का तारा, वही आमना की आंखों का तारा, अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा, वही हम सब का, हम गरीबों का सहारा, वही आमना की आंखों का तारा जिस दिन इस दुनिया में तशरीफ लाया। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो वक्त कौन सा था, वो समय कौन सा था, वो टाइम कौन सा था, वो घड़ी कौन सी थी। हजरत मोहतरम वो घड़ी सुबह सादिक का वक्त था, सुबह सादिक का वक्त था, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। अकल ने सोचा कि आखिरकार या रसूल अल्लाह आप इसी ही वक्त में तशरीफ क्यों लाए। अगर तशरीफ लाना ही था तो रात की तारीकी में तशरीफ ले आते, तशरीफ लाना ही था तो दिन के उजाले में तशरीफ ले आए होते। हज़रात मोहतरम जवाब दे दिया, जवाब मिल गया कि एक तो वजह यह है मैं इस वक्त में इस वजह से आया हूँ, इसकी वजह यह है कि रात जाते जाते चेहरे मुस्तफा का दीदार करती चली जाए और दिन आते आते चेहरे मुस्तफा का दीदार करता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाई जवाब मिलना शुरू होता चला जा रहा है। अब यहाँ से जवाब मिल रहा है कि यहाँ पर आने की वजह यह है और एक सबक यहाँ से ये भी मिलता है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस जमीन पर तशरीफ नहीं लाए थे तो कितने जुल्म सितम ढाए जा रहे थे, कितने जुल्म सितम हो रहे थे। हज़रात मोहतरम झूठ बोला जा रहा था, चोरियां की जा रही थी, शराब नोशी बड़ी तादाद में बढ़ती हुई चली जा रही थी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बच्चों को जिंदा बेगोर कफन दफनाया जा रहा था। अगर कोई इंसान अगर अपनी बीवी की गोद में किसी बच्ची को देख लिया करता तो उसका हाथ या टांग को पकड़ लिया करता और उसको घसीटता हुआ एक बयाबान जंगल में लेता हुआ चला जाता था। वो बच्ची चीख रही थी, वो बच्ची चिल्लाती चली जाती थी, वो बच्ची बोलती जाती थी, बाबा जान मैं तुम्हारी लाडली बेटी हूँ, बाबा जान मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मुझे कहाँ लेकर के चले जा रहे हो, बाबा जान मुझे कहाँ पर खींचा जा रहा है। लेकिन वो बाप इतना जालिम था
आवाज को नहीं सुना जाता था। उस बच्ची को घसीटते हुए एक खड्डा खोदा जाता था, यानी कि खड्डा खोदने के बाद में फिर उस बच्ची के गले पर वही जालिम बाप उसी बच्ची के गले पर अपने पाँव को रख किया करता था, उस बच्ची के गले को दबाना था, बच्ची की जुबान बाहर आ जाया किया करती थी। अल्लाहू अकबर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और क्या कुछ नहीं हो रहा था, बहुत कुछ इतना जुल्म सितम ढाए जा रहे थे, यतीमों को सताया जा रहा था, गरीबों को सताया जा रहा था, बेवाओं को सताया जा रहा था। हज़रत मोहतरम इतना जुल्म सितम अल्लाह तबारक व तआला ने हम मोमिनों पर, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर करम फरमाया। कलामे मुक़द्दस में ऐलान फरमा दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मुमिनीन पर बड़ा एहसान किया है कि इनमें बड़ी अज़मत वाला रसूल भेजा है। बेशक इस्लामी भाइयों, जब आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील अमीन, ऐ जिब्रील जा फौरन जन्नत जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ जिब्रील फौरन जन्नत जा, जन्नत से 3 झंडे ले ले, 3 झंडे ले ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झंडे ले ले, एक झंडे को मशरिक में जाकर के लगा दे, दूसरे झंडे को मेरे घर काबे की छत पर जाकर के लगा दे, और तीसरे झंडे को मगरिब में जाकर के लगा दे। सुभान अल्लाह। एक झंडे को मशरिक में लगाया जा रहा है, दूसरे को मगरिब में लगाया जा रहा है, और तीसरे झंडे को काबे की छत पर लगाया जा रहा है। तो अब यहाँ से पता ये चलता है कि झंडा लगाना जिब्रील अमीन की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। झंडा लगाना जिब्रील अमीन की सुन्नत है। अब आइए, हश्र का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरुषान हाल न होगा, कोई किसी का यार न होगा, कोई किसी का मददगार न होगा। उस वक्त में हमारे नबी के हाथ में झंडा होगा। सुभान अल्लाह। उस वक्त में हमारे नबी के हाथ में झंडा होगा, जिसका नाम लिवाउल हम्द होगा। सुभान अल्लाह। वो झंडा कैसा होगा, वो झंडा कितना बड़ा होगा, वो झंडा कितना लंबा चौड़ा होगा। हजरत आओ मैं बतलाता हूँ। आज जो लोग कहते हैं कि झंडे को नहीं लगाना चाहिए, झंडे को नहीं लगाना चाहिए, अरे क्यों नहीं लगाना चाहिए? कि झंडा लगाना बिदअत है, झंडे लगाने को बिदअत बोला जाता है, झंडा लगाने को मना किया जाता है। तो हश्र के मैदान में जो झंडा होगा वो हमारे नबी के हाथ में होगा। आज जो हम झंडा लगाते हैं, इस पर क्या बना होता है? गुंबद खसरा बना होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जो झंडा होगा, जिसका नाम लिवाउल हम्द होगा, हमारे नबी के हाथ में होगा। हज़रत मोहतरम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उसी झंडे के नीचे आदम अलैहिस्सलाम भी होंगे। सुभान अल्लाह। उसी झंडे के नीचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी होंगे, इस्माईल अलैहिस्सलाम भी होंगे। उसी झंडे के नीचे यहया अलैहिस्सलाम भी होंगे। इसी झंडे के नीचे यूनुस अलैहिस्सलाम भी होंगे। उसी झंडे के नीचे मूसा कलीमुल्लाह भी होंगे। उसी झंडे के नीचे ईसा रूहुल्लाह भी होंगे। उसी झंडे के नीचे हजरत अबू बकर सिद्दीक भी होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक भी होंगे। उसी झंडे के नीचे उमर फारूक आजम भी होंगे। उसी झंडे के नीचे हजरत उस्मान गनी भी होंगे। उसी झंडे के नीचे मौला अली भी होंगे। उसी झंडे के नीचे आका इमाम हसन भी होंगे। उसी झंडे के नीचे आका इमाम हुसैन भी होंगे। और उसी झंडे के नीचे अपने मुरीदों के साथ में, अपने गुलामों के साथ में पीराने पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर वो से बगदादी उसी झंडे के नीचे अपने मुरीदों के साथ में, अपने चाहने वालों के साथ में ख्वाजा ख्वाजगान, ख्वाजा हिंदुस्तान, ख्वाजा ख्वाजगान, ख्वाजा हिंदुस्तान, ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने गुलामों के साथ में, अपने गुलामों के साथ में हुजूर आला हजरत भी होंगे। बेशक इस्लामी भाइयों, तो ये सब के सब उसी झंडे के नीचे होंगे, जिसका नाम लिवाउल हम्द होगा। हजरत मोहतरम अब उस झंडे के नीचे जितने जन्नती है, वही उस झंडे के नीचे
इरशाद फरमाएंगे, आ जाओ मेरे गुलाम आ जाओ, आका हुसैन को मानने वालों आ जाओ, मोइनुद्दीन के चाहने वालों आ जाओ, आला हजरत के मानने वालों आ जाओ, इसी झंडे के नीचे आ जाओ। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है जन्नत के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे तो यही लोग कहते होंगे, आला हजरत की जुबान में बोलते होंगे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, नजदी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, नजदी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पाँव पलटे, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो जा, अंधे नजदी देख देख कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। जो लोग यहाँ पर कहते हैं कि झंडा नहीं लगाना चाहिए, झंडे का सबूत कहाँ से है, तो आओ हम जवाब देते हैं। तभी तो बिस्टान की सरजमीन से, बिस्टान की जामा मस्जिद से मुफ्ती साहब बोल पड़ते हैं, आओ प्यारे हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। और जवाब देते हैं मुफ्ती साहब के झंडे का जवाब लेते हो, तो आओ हम देते हैं झंडा कहाँ से साबित है, जिब्रील अमीन की सुन्नत है। हुक्म किसने दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। किसको हुक्म दिया है, जिब्रील अमीन को हुक्म दिया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ वो झंडा ऐसा कितना बड़ा झंडा होगा, कितना बड़ा झंडा होगा, 1000 मील या 700 मील की मुसावत उस झंडे की होगी। आज इस झंडे पर गुंबद खसरा लिखा होता है, कलमे तैयबा लिखा होता है, लेकिन उस झंडे पर भी कुछ लिखा होगा। तो हाँ उस झंडे पर भी लिखा होगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, 3 सतरों में लिखी होंगी, 3 लाइनें लिखी होंगी। हजरत मोहतरम पहली लाइन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली लाइन में जो लिखा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा होगा, और दूसरी लाइन में जो लिखा होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मोहतरम दूसरी सदर में हम्दु शरीफ सूरह फातिहा लिखी होगी, और तीसरी सदर में जो लिखा होगा, मेरे साथ में सब मिल करके आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक एक आवाज होकर के पढ़े। तीसरी सदर में जो लिखा होगा, तीसरी लाइन में जो लिखा होगा, वो लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर इस झंडे पर भी लिखा होता है, वो झंडे पर भी लिखा होता है। कहने वाला बोल देगा, कहने वाले ने बोल दिया, जनाब तुमने झंडे का तो सबूत दे दिया है, झंडे को तो तुमने बतला दिया है, लेकिन ये जो जुलूस निकाला जाता है, ये जो जुलूस को मनाया जाता है, ये कहाँ से साबित है, ये साबित करके बतलाओ। ये इतना सब कुछ लंगर लुटाया जाता है, इतना सब कुछ बखेरा जाता है, ये साबित कहाँ से है, ये कहाँ से जायज है। तो फिर मुफ्ती साहब बोल उठे, क्या हो प्यारे हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए, हम जिगर आजमाए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब यही सबूत दिया जा रहा है। हजरत आमना की गोद में अल्लाह का प्यारा नबी, हजरत आमना की गोद में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और जैसे तशरीफ लाए तो धीमी धीमी मीठी मीठी खुशबू हवा के साथ में, धीमी धीमी मीठी मीठी खुशबू मक्का की सरजमीन पर, मक्का की सरजमीन पर एक तरफ से फैलती चली जा रही है, फैलती चली गई। बड़े बड़े मक्का के सरदार काबे के अंदर आ गए, हमें काबा में आ गए, इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होने के बाद में बोलते चले जा रहे हैं। कोई बोल रहा है यार मेरा घर महक रहा है, कोई कह रहा है कि मेरा घर महक रहा है।